मेरी आवाज आ रही है? जी जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. First of all, I welcome everyone here, especially the new ones who joined our organization now. I'm your host for this activity. My name is Musfira Noor and I'm head of social media department. First of all, I would like to call Ms. Batul Riaz, the president of IUB cabinet. Ma'am, please can you say a few words? Assalamu alaikum. वालेकुम Walaikum assalam. Hope you all are fine and in good health. I am of 360 Muslim Expert IUB Cabinet. A very warm welcome to all of you in 360 Muslim Expert IUB Cabinet. क्वेश्चन को पूरी पूछनी हो तो आफ्टर मीटिंग या फिर पर्सनल पूछ सकते हैं. थैंक यू. Thank you, ma'am. Now I would like to call Abu Huraira for the recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. Jazakallah. As we know, we all are here working for 360 Muslim Expert organization. Let me introduce it first. 360 Muslim Expert is a non-profit organization. By joining this platform, you can polish your hidden skills. In this organization, there are different cities, different cabinets, and different departments. In Bahawalpur Council, there are 2 cabinets. We all belong to 360 Muslim Expert IUB cabinet. And we have completed our one project, and it was very successful, alhamdulillah. And now we are going to arrange this. Let me give an introduction to all heads
Muslim Expert IUB Cabinet. Its president is Batul Riaz. Vice President is Ms. Shaiza Fatma. Content Head is Ms. Nimra Sajjal. HR Head is Ms. Ulaba Waheed. Educational Domain Head Ms. Kiran Fatma. Event Managing Head Rana Junaid. Religious Domain Head Abdul Basit. And Graphic Designing Head Anika Anwar. If you have any query about this, you can text in group and you can ask Ms. Batul Riaz, our president. And now I would like to call Educational Domain Head Ms. Kiran, who have arranged this activity for us, to please proceed this activity. Over to you, ma'am. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Walaikum Thank you, assalam. Mr. Waalaikum salam. Thank you, all of you. Thank you, Mr. Laiba, Ms. Batul, for giving me this opportunity to express my words. Today, I will first introduce my topic, which is science in the Muslim world. Basically, this topic is a connection between Islam and science. ठीक है, सबसे पहले तो इस्लाम में दो चीजें आती हैं, एक है कुरान और एक है हदीस. ठीक है, कुरान और हदीस की रोशनी में हम लोग डिफाइन करेंगे कि हम इस्लाम को साइंस के साथ किस तरह कोरिलेट करते हैं. ठीक है, बहुत सारे एक्सपेक्ट्स हैं जिसमें हम कुरान को साइंस के साथ रिलेट कर सकते हैं. एक शॉर्ट सी मीटिंग है, ठीक है, जिसमें हम लोग सिर्फ कुछ रीजन्स को, कुछ पहलुओं को हम लोग क्या करेंगे, रिलेट करने की कोशिश करेंगे. एक बहुत अच्छा और एक लंबा ही टॉपिक है. ठीक है, फर्स्टली आई विल टेल let me share my screen with you guys. सबको स्क्रीन विजिबल हो रही है? नहीं किरण, आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है. ओके, मुझे एक दफा और ट्राई करने दो. होस्ट मुझे अलाउ कर दें प्लीज मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए, स्क्रीन शेयर करने के लिए ज्वाइन अलाउ कर दें. मिस्टर लाइबा. मुस्फिरा. ओके, सॉरी मिस मुस्फिरा, मुझे अलाउ कर दें. मैं करती हूँ, 1 मिनट. जब तक मैम अलाउ करती हैं तब तक मैं आपको थोड़ी सी इसका इंट्रोडक्शन देती हूँ. ठीक है, देयर आर सम ऑफ द मैनी साइंटिफिक फैक्ट्स फाउंड इन द कुरान. कुरान में बहुत सारे हकायक मौजूद हैं. इट इज important to note that the Quran is not a book of science, but it is the book
which tells us about facts। ठीक है, ये एक ऐसी किताब है जो हमें बताती है। कैन यू हेयर माई वॉइस? मुझे लगता है कि कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। कैन यू गाइस कैन हेयर माई वॉइस? जी जी, आवाज आ रही है आपकी बिल्कुल। किरण, आपका जो है वो ऑप्शन नहीं आ रहा ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग का, दोबारा से करें, मैं आपको अलाउ करती हूँ। मैं अलाउ बार बार कह रही हूँ कि मुझे अलाउ कर दें, अलाउ का ऑप्शन नहीं आ रहा मुझे। मुझे अलाउ कर दें तो फिर मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ। ठीक है, इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द कुरान इज नॉट अ बुक ऑफ साइंस बट दैट इट इज कंसिस्टेंट विद द साइंस। इसका साइंस के साथ कोई ना कोई ताल्लुक है। ठीक है, यूनिवर्स अ मोबाइल फोन, यूनिवर्स एक मोबाइल फोन की तरह है, जैसे कि कोई चीज मूव कर रही है। इट्स क्लियरली समथिंग दैट वी पुट टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, सो इट वुड बी रेशनल टू बिलीव दैट इट मस्ट हैव एन ऑर्गेनाइजर। ठीक है, एक चलती फिरती यूनिवर्स को देख के क्या हम लोग इतना अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसका कोई एक ऑर्गेनाइजर है? हर चीज एक तरतीब में घूम रही है। क्या इन चीजों को देखते हुए इंसान इतना अंदाजा नहीं लगा सकता? हम दीन वाले हैं, ठीक है, हमें किरण, अब ईमान है। करो तो, मैंने अलाउ किया है आपको। अब हो रही स्क्रीन शेयर? नहीं, अभी तो नहीं हो रही किरण, आपकी वॉइस भी बहुत स्लो है। अब हो रही है? जी जी, अब हो रही है, अब हो रही होगी जी, अब लेकिन हो रही होगी। आपकी ना ठीक है, वॉइस बहुत स्लो है, थोड़ा लाउडली बोले। मैं वॉल्यूम, मेरा फुल है वॉल्यूम। ठीक है, मैं ऊंचा बोलने की ट्राई करती हूँ। ठीक है, क्या एक चल हर चीज ऑर्गेनाइज्ड वे में घूम रही शायद है इस आपकी ना दुनिया हैंड में? फ्री में कोई प्रॉब्लम होगी, या हैंड फ्री उतार दें या फिर उसको चेक करें, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत स्लो आवाज है। मैंने इसीलिए हैंड फ्री लगाई ही नहीं है कि उसके थ्रू कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर बहुत अभी भी वॉइस नहीं स्लो आ आ रही रही? है, समझ नहीं आ रही। क्या मसला है? ऐसे कोई मेरी अपनी तरफ से तो मेरी फुल है आवाज, सबको ही नहीं आ रही? रही है, आ रही है आवाज क्लियर आ रही आ रही है, आ रही है, आप कंटिन्यू है, करें। आ रही है clear। बतूल आपको ही नहीं आ रही मेरे ख्याल से। मुझे हर वॉइस आ चीज रही है एक लेकिन और बहुत स्लो है। आपकी वॉइस तो सही है। जो है ना इको आ रही है आपकी आवाज की भी। मेरी तरफ से बिल्कुल ठीक है वैसे आवाज। चलें ठीक है, अब ठीक है, बोले आप। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में घूम रही है इस दुनिया में, इंसान चल फिर रहा है, तारे अपनी गर्दिश में है, सूरज अपने वक्त पर तलू और गरूब होता है, दिन और रात अपने वक्त पे आ रहे हैं। हर चीज की ऑर्गेनाइजेशन देख के क्या इंसानी अकल इतना अंदाजा नहीं लगा सकती कि कोई है, ठीक है, जो इस हर चीज को संभाले हुए है। ठीक है, और इस सिलसिले में कुरान कहता है, ठीक है, we shall now show them our signs in the universe and within themselves until it becomes clear to them that it is the truth. It is not enough that your Lord is the witness of all these things। ठीक है, तो अल्लाह में ये कहता है कुरान पाक में कि हम उन्हें अपने निशानियों के जरिए ये सिखा बताएंगे, ठीक है, कि और उन्हें ये क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि हर चीज जो वो देख रहे हैं अपनी आंखों से ये सच्चाई है, और इस ये सच्चाई है। हर चीज अपने मदार में घूम रही है और इन सबको चलाने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। ठीक है, साइंस हैज रूट्स इन इस्लाम। ठीक है, साइंस की क्या है? साइंस की जो रूट्स हैं वो इस्लाम में है। टुडे वन मे बी हाईली एजुकेटेड सिटीजन ऑफ अ वेल्दी मॉडर्न सोसाइटी विद इन द इंटरनेट एट वंस फिंगरप्रिंट। ठीक है, आज का इंसान बेशक हाईली एजुकेटेड है, ठीक है, और हर चीज उसके एक फिंगर प्रिंट पे रखी हुई है।
लेकिन अल्लाह मियाँ ने उसे ये सलाहियत और काबिलियत सिर्फ इसीलिए दी है ताकि वो उसकी दुनिया में मौजूद जितने भी उसके शवाहिद हैं और जितने भी उसके साइन हैं उनको देकर, ठीक है, उनको चला सके और उनको बयान कर सके। अब मुख्तलिफ रीजन्स हैं जिनको हम इस्लाम के साथ को रिलेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और बताऊंगी इस्लाम के बारे में कि इस्लाम में जो इस्लाम की एक मेन किताब है जो कि कुरान मजीद है, उसका कैसे लिंक बनता है हमारी साइंस के साथ। वी शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइंस एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम द ग्रीक साइंस। मॉडर्न साइंस और ग्रीक साइंस दो अलग अलग चीजें हैं। ग्रीक साइंस वो थी जो पहले गुजर चुकी है और एक मॉडर्न साइंस है। Westerns often assert that the Muslims preserved Greek science. This is the half truth instead. Muslims transformed it. In modern science and Islamic science its later phases differ gradually from the Greek science. ठीक है? Thus, Greeks were rationalists. They believed that one could know scientific truth by reason only. ठीक है? अब जो ग्रीक साइंटिस्ट थे वो ये यकीन करते थे कि किसी भी एक चीज को देखकर उसकी सिर्फ रीजन मालूम करनी चाहिए। लेकिन जो मॉडर्न साइंस है और एरिस्टोटल था, सेड दैट द साइंटिस्ट इज द वन who grabs that everything is the way it's because it could be no other way। ठीक है, एरिस्टोटल ने कहा था कि साइंटिफिक साइंस की और एक साइंटिस्ट की ये डेफिनेशन है कि वो जब किसी भी चीज को देखे तो वो उसकी रीजन के पीछे बल्कि ना भागे बल्कि उसके ओरिजिन के पीछे भागे। द प्रॉब्लम दैट सम मुस्लिम स्कॉलर्स हैव with the scientists getting involved in religion is that the scientists mistake modern scientific method for the Greek method of learning। ठीक है, अब जो कुछ स्कॉलर्स थे उनमें से उन्होंने हर चीज का जो ताल्लुक है उसको किसी ना किसी मजहब में तलाश करना शुरू कर दिया, जैसे कि मुस्लिम साइंटिस्ट थे। अब यहीं से ये चीज इजाद होनी शुरू हुई थी कि जो मुस्लिम हमारे साइंटिस्ट और मुस्लिम स्कॉलर्स थे उन्होंने हर चीज का ओरिजिन को इस्लाम के साथ मिलाने की, ठीक है, कोशिश की है। The Quran is not a scientific textbook. It does not instruct us how Allah created the universe. कुरान है हमें ये नहीं बताता कि अल्लाह मियाँ ने कैसे इस यूनिवर्स को क्रिएट किया है, ठीक है। इट इंस्ट्रक्ट अस दैट ही डिजाइंड इट। उसने सिर्फ हमें ये बताया है कि इसने अल्लाह मियाँ ने इस यूनिवर्स को डिजाइन किया है। अब कैसे किया है ये हमने अपनी अक्ल से अंदाजे लगाने हैं या अपनी अक्ल से वजूहात पेश करनी है, रीजंस देनी है कि अल्लाह मियाँ ने हर चीज को कैसे बनाया, कैसे अरेंज किया, कैसे ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। और इसी का नाम ये टेक्नोलॉजी आ गया है। यही साइंस है जो इंसान ने अपनी अकल से बना लिया, यही है साइंस। इसमें फर्स्ट चीज है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। अब ये कुछ रीजन हैं जिनको हम इस्लाम के साथ रिलेट करेंगे, ठीक है। इसमें फर्स्ट रीजन ये है एम्ब्रियोलॉजी। अब फर्स्ट वर्ड पुरानिक वर्स इज हियर, वी हैव क्रिएटेड मैन ऑफ अ ड्रॉप ऑफ अ स्पर्म इंटरमीडिएट, के हमने इंसान को एक नुत्फे से पैदा किया है। जो स्पर्म है उसको नुत्फा कहते हैं, ठीक है। एक और कुरानिक वर्स है, वी हैव क्रिएटेड मैन फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ क्ले, कि हमने उसको मट्टी से पैदा किया। देन वी मेड हिम एज अ ड्रॉप इन द प्लेस ऑफ सेटलमेंट firmly fixed. Then we made the drop into an alcohol leech, suspended thing and a clot of blood. Then we made the alcohol into a मक्ता, मतलब फ्लूइड सब्सटेंस, के हमने इंसान को मिट्टी से बनाया, उससे एक ब्लड के कतरे से पैदा किया, फिर उसमें से क्या किया कि उसको एक एम्ब्रियो में कन्वर्ट किया। जैसे कि स्पर्म और एग जब मिलते हैं तो सबसे पहले जाइगोट बनता है एंड देन एम्ब्रियो, ठीक है। यही वर्ड जो एम्ब्रियो है इसी को हम एम्ब्रियोलॉजी से, ठीक है, इसी ब्रांच के साथ रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें थे एक प्रोफेसर इमरत किट थे, ठीक है, ली मोरो, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोमिनेंट साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। उन्होंने कहा था, अब देखें कि एक नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा था, इट इज क्लियर टू मी दैट दीज स्टेटमेंट्स मस्ट हैव कम टू मोहम्मद फ्रॉम गॉड। जब उन्होंने कुरान को पढ़ा तो उन्होंने कहा कि मुझ पे ये सब वाजिया हो गया है कि जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं ये मोहम्मद को गॉड की तरफ से मिली हैं, ठीक है। बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दिस नॉलेज वी नॉट डिस्कवर्ड अंटिल मैनी ईयर्स लेटर, कि हम कुछ सालों, कुछ सेंचुरीज, कुछ सदियों, कुछ दहाइयों पहले तक हम इन तमाम चीजों से क्या थे, मुतारिफ ना थे, बिल्कुल भी नहीं थे। साइंस टेक्नोलॉजी से हम लोग क्या थे, बिल्कुल भी मुतारिफ ना थे।
तो इसका मतलब है कि अल्लाह मियाँ ने किसी बंदे को, ठीक है, अब बताई कि जब उन्होंने कुरान पाक पढ़ा तो उन्होंने ये वाज़ह कर दिया कि ये चीजें क्या थी कि अल्लाह की तरफ से मोहम्मद को बताई गई थी, ठीक है। उन्होंने भी ये बिलीव कर लिया। अब उसके बाद एस्ट्रोनॉमी, वी हैव बिल्ड द स्काई विद आवर स्पेशल एबिलिटी एंड वी आर एक्सप्लेनिंग इट, ठीक है, कि हमने क्या बनाया, हमने आसमान बनाया और हम क्या कर रहे हैं, और हम इसको मतलब उस जगह पे कायम और बरकरार रख रहे हैं। तो ये बरकरार किस तरह रख रहे हैं, ठीक है, इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। देखिए अब स्काई है, बगैर सतूनों के, अल्लाह ने कुरान में वाज़ा किया है कि बगैर सतूनों के उन्होंने क्या किया है कि एक छत को खड़ा किया हुआ है। अब ये छत क्या है, इस छत आसमान को कह रहे हैं, ठीक है, उन्होंने इसको क्या किया है, बगैर सतूनों के खड़ा किया है। तो इस पे ये उन्होंने जो दी है ये, ठीक है, कुरानिक वर्स है। अब ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं और कहते हैं कि uh, that seems to be a rather unusual statement. The word expanding is not a typical word choice in such statement. अब इसके बारे में मॉडर्न साइंस क्या कहती है, ठीक है, स्काई के बारे में। Interestingly, until very recently, even scientists thought that the universe might be static. कि यूनिवर्स क्या है, स्टैटिक है, मतलब एक्सपेंड नहीं कर रही। यहाँ पे वर्ड एक्सपेंडिंग है, ठीक है, एक्सपेंडिंग इट एंड वी आर एक्सपेंडिंग इट, नॉट एक्सप्लेनिंग इट, ठीक है। और हाँ, ये एक्सपेंड नहीं कर रही, साइंस ने इसको कहा है। दैट वाज so much the case that Albert Einstein, one of the world's most brilliant scientists, at one point even looked into modify his equations to deal with the case of a static universe. So we are great shocked to the scientific world when Hubble establishment that the galaxies were actually speedily away from the, suggesting that the universe was in fact expanding, ठीक है। शुरू शुरू में साइंस ने क्या किया है कि ये वर्ड एक्सपेंड नहीं कर रही, ठीक है, ये यूनिवर्स एक्सपेंड नहीं कर रही। फिर उस पे वक्त के साथ साथ, ठीक है, साइंटिस्टों ने भी इस बात पे यकीन किया है कि जो वर्ड है वो एक्सपेंड कर, जो यूनिवर्स है वो क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। He reached this conclusion using something called the Doppler effect, ठीक है, एक डॉपलर इफेक्ट है साइंस का, ठीक है, ये एक इफेक्ट है और इसकी एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे इतनी नहीं दूंगी। इस इफेक्ट को यूज करते हुए साइंटिस्ट को ये यकीन हो गया कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रही है, ठीक है। और फिर एक ये नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट की एक एक्सप्लेनेशन है, और जिन्होंने कुरान की वर्स को, ठीक है, देखते हुए इस चीज का उन्होंने क्या किया है, उसको कबूल किया है, ठीक है। और उसके बाद अर्थ, ठीक है, अर्थ। अब अर्थ क्या है, कुरानिक वर्स है, ही शेप द अर्थ एज एन एग। अल्लाह मैंने, मतलब अल्लाह ये कह रहा है कि मैंने अर्थ को क्या बनाया है, एक एक एग की तरह बनाया है, ठीक है। अंडे अंडे का जो खोल होता है वो ओवल शेप्ड होता है। हमारी जो जमीन है वो भी ऐसे ऐसे अंडे की शेप की ओवल शेप है, ठीक है। ही अब ये कुरानिक वर्स है 79.30। Now it should be noted that the Arabic verb dahaha is used and its multiple meaning, one of it which refers to as egg, ठीक है, और एग लाइक शेप। दहाहा का वर्ड यूज हुआ है, दहाहा का मीनिंग होता है कि एग या फिर एग लाइक शेप, ठीक है। अब मॉडर्न साइंसेस के बारे में क्या कहती है, ऑफ कोर्स इट हैज बीन वेल एस्टैब्लिश्ड फॉर अ व्हाइल दैट वर्ड इज फाउंड, ठीक है। फिर मॉडर्न साइंस ने भी यकीन किया कि जो हमारी यूनिवर्स है वो क्या है, ओवल शेप, ठीक है। फंक्शंस ऑफ माउंटेन, अब जो पहाड़ियां हैं उनके बारे में इस्लाम और साइंस का क्या रिलेशन है। अल्लाह सेज इन कुरान, डिड वी नॉट मेक द अर्थ अ रेस्टिंग प्लेस, क्या हमने जमीन को एक रेस्टिंग प्लेस नहीं बनाया। एंड द माउंटेन्स एज स्टेक्स, और क्या माउंटेन्स को हमने एज अ स्टेक नहीं बनाया। अब ये ठीक है, रिस्ट्री प्लेस लिखा हुआ है, यह है रेस्टिंग प्लेस, ठीक है, एज स्टेक। अब इसमें वर्ड स्टेक है, आप में से कुछ लोग अनफेमिलियर होंगे। द आई डिस्क्राइब माउंटेन एज स्टेक व्हिच गॉड इज डीप डाउन द अर्थ। एक ऐसी चीज होती है जो जमीन के ऊपर होने के साथ साथ जमीन के नीचे भी होती है, ठीक है।
Today science proves this claim of Quran, according to which the mountains are not just above the surface, rather they have roots deep down below earth surface as well. ये जो माउंटेन्स होती हैं, ये साइंस, आज की साइंस ने प्रूव किया है कि जो माउंटेन जमीन के ऊपर होने के साथ साथ जमीन के नीचे भी हैं। तो कुरान की में ये जो वर्ड टेक आया है, ठीक है, उन्होंने, साइंस ने इसको प्रूव कर दिया है, ठीक है, प्रूव किया और बताया है कि जो माउंटेन्स होती हैं वो जमीन के ऊपर होने के साथ साथ जमीन के नीचे भी होती हैं। अब जो वर्ल्ड की दुनिया की लार्जेस्ट, ठीक है, हाईएस्ट पीक है वो है एवरेस्ट, और ये इस चीज की एक बेस्ट एग्जांपल है। साइंटिस्ट के मुताबिक जो माउंट एवरेस्ट है वो जमीन के ऊपर 9 किलोमीटर, ठीक है, और लेकिन बिलो द सरफेस 125 किलोमीटर से बिलो द सरफेस भी मौजूद है, ठीक है, जिसको उन्होंने फाइंड किया है। Thus, the metaphor of mountains as takes in Quran actually gets the scientific proof. तो साइंटिफिक प्रूफ भी मिल गया, ठीक है, इसीलिए माउंटेन्स का यहाँ पे रिलेशन बन गया, ठीक है, किसके साथ, कुरान के साथ। इस्लाम और मेडिकल साइंस है, ठीक है, जब हम अपनी जिंदा जीती जागती एक बॉडी को देखते तो हमें इस बात का यकीन हो जाएगा कि जो एक चलता फिरता इंसान है ये किसी एक खास खास अकल के पीछे है, ठीक है, एक अक्लो फहम के पीछे है, ठीक है, कि एक एक चीज इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे घूम फिर रही है कि हमारे जिस्म में इतने सारे अमल एक साथ चल रहे हैं, वो एक दूसरे से टकराते क्यों नहीं है, ठीक है, इधर ब्लड प्रेशर हाई, बहुत जल्दी हाई भी तो हो सकता है, ठीक है। अब देखिए कि इंसान की इतनी अकल नहीं है कि अस्तगफिरुल्लाह कि आज तक एक एक ठीक है, एक जिस्म का एक ऑर्गन नहीं बना सके, कोई भी साइंटिस्ट एक जिस्म का उस लेवल का ऑर्गन नहीं बना सकता जो अल्लाह मियां ने हमारी बॉडी के अंदर रख दिया है, ठीक है। तो इससे बड़ी क्या प्रूफ हो सकता है कि कोई एक ऑर्गेनाइजर है, ठीक है, वो कोई एक जात है जिसने एक इंसान को चलाया हुआ है, ठीक है। मेडिकल साइंस में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, ठीक है। मैं किसी एक पे बात करूंगी, जैसे कि पेन रिसेप्टर्स, हमारी उंगलियों का पोर, हमारे जिस्म में मौजूद सेल्स, ठीक है, ठीक है, हमारी जो पेन, ठीक है, एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, पेन के रिसेप्टर्स। तो सूरह अल-निसा में अल्लाह ताला फरमाता है कि we shall send who reject our elevations to the fire, we when their skins have been burned away we shall replace them with new ones so that they can may continue to feel the pain. God is almighty all wise, ठीक है। अल्लाह मियां कहता है कि जब हमें उन्हें जहन्नम में भेजेंगे तो जब उनकी स्किन जल जाएगी तो हम उनको एक दोबारा से नया स्थल वहां पे क्रिएट कर देंगे ताकि वो जो पेन की शिद्दत है उसको क्या कर सके, बार बार महसूस कर सके। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज थॉट दैट द सेंस ऑफ फीलिंग एंड पेन वाज डिपेंडेंट ऑन द ब्रेन। बहुत लंबे अरसे तक ये सोचा गया है कि जो पेन है, जो फीलिंग ऑफ पेन है वो किस पे है, ब्रेन पे डिपेंडेंट है। और इट हैज बीन डिस्कवर्ड दैट देयर आर पेन रिसेप्टर प्रेजेंट इन द स्किन। पहले पहले ये सोचा जाता था कि ये ब्रेन के साथ इसका लिंक है, फिर वक्त के साथ साथ हमें वो पेन रिसेप्टर मिल गया जिनका अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमाया है। यहाँ पे आप गौर करें तो क्या है, रिप्लेस देम विद न्यू वन, हम उनको दोबारा से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, ताकि वो दर्द की शिद्दत को बार बार महसूस कर सके, ठीक है। तो फिर वक्त के साथ साथ ये पेन रिसेप्टर्स भी हमें मिल गए अपनी स्किन में। विदाउट दीज पेन रिसेप्टर्स अ पर्सन वुड नॉट बी एबल टू फील पेन, ठीक है। अगर ये पेन रिसेप्टर्स नहीं होंगे तो एक इंसान पेन नहीं फील कर सकता। अनदर एग्जांपल ऑफ साइंटिफिक मिरेकल्स ऑफ द होली कुरान, ठीक है। अब देखिए कुरान का एक और मौजूदा है, ठीक है, ये एक सिर्फ एक डायग्राम है, ठीक है, ये रिसेप्टर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल फिंगर है हमारी, ठीक है, उसके ऊपर पेन रिसेप्टर है। लिगेंड की जगह कोई भी ऐसी चीज आ रही है जो पेन कॉज कर सकती है, लाइक फायर, आग, या ठीक है कोई भी कील वगैरह, जब ऐसे हमारे वो रिसेप्टर के साथ टच होगा तो हम पेन फील करेंगे, ठीक है। अब स्पेस, अब इस दुनिया, हमारी इस अर्थ के बाहर भी एक चीज है, वो है ये स्पेस, ठीक है। ये देखिए, ये ये गैलेक्सीज, ये ठीक है, मुख्तलिफ और प्लैनेट, स्टार्स, ठीक है, ये है हमारी स्पेस। स्पेस एक बिगेस्ट थिंग है विच इज अ प्रूव और साइंस, और ठीक है, ये इज अ प्रूफ है, ये एक साइन है किस चीज की, एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह, के एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह, या ऑर्गेनाइजर के, एक ऐसा ऑर्गेनाइजर है जिसने क्या किया हुआ है, इन सब चीजों को
अपनी जगह पे क्या रखा हुआ है, कायम रखा हुआ है. वी विल शो देम आवर साइंस एंड द यूनिवर्स इन देयर ओन सेल्फ until it becomes manifest to them that this is Quran which is truth. ठीक है, हम उन्हें इस दुनिया में कुछ साइन दिखाएंगे, ठीक है, और उन्हें बताएंगे कि, और उनको ये यकीन दिलाएंगे कि ये सब कुछ क्या है, ये सच है, कुरान क्या है, सच. ठीक है. मैम क्या हम लोग सवाल कर सकते हैं? अब रेगुलेशन ऑफ ल्यूनर कैलेंडर, ठीक है, ये एक ऐसा एस्पेक्ट है, ठीक है, इसको हम आप लोग डिफाइन एंड पे करेंगे क्वेश्चन कर सकते हैं. कि इस्लामिक कैलेंडर इज स्ट्रिक्टली ल्यूनर. ठीक है, जो हमारा इस्लामिक कैलेंडर है वो जो इस चांद के मदार के घूमने के साथ साथ रिलेट करता है. अब ल्यूनर कैलेंडर क्या है, इसमें 12 मंथ होते हैं, 345 डेज होते हैं, और हर साल 7 दिनों का गैप आता है इसमें. ठीक है, पहले पहले ये था कि ल्यूनर कैलेंडर था, ठीक है, हम उसको चांद की गर्दिश के साथ हम उसको रिलेट हमने किया है, इंसान ने किया है. वो तो ल्यूनर कैलेंडर रमजान, मुहर्रम, सफर, ये सारे महीने क्या थे, अल्लाह मियाँ की तरफ से आ गए थे. लेकिन अब ल्यूनर कैलेंडर को जो रिलेट किया है इन्होंने, ठीक है, चांद की गर्दिश के साथ, वो अब वो जो 12 महीनों में हर दफा 7 दिन का गैप आता है, वो इस चांद की गर्दिश की वजह से है. The beginnings and ends of lunar months, in particular of the holy month of Ramadan and very few festivals throughout the 12 months year, are regulated by the first appearance of lunar crescent. कि जब चांद का चांद का पहली तारीख होती है, तो वहां से हर महीने का आगाज हो जाता है. These 12 lunar months add up to 354 days, and the 12-month cycles of the Islamic calendar occurs some 11 days, ठीक है, earlier each. ये सॉरी मिस्टेकनली 7 डेज हो गया, ये 11 डेज है. ठीक है, 11 डेज हर दफा क्या होती है, पीछे आ जाता है दिन. टू कीप द lunar month in line with the seasons of the solar system, solar year, it was the custom in pre-Islamic times to insert an additional intercalary month in the lunar calendar every few years. This practice the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam abandoned. The Quran Express forbids such intercalation, and the exact explained the prescription was necessarily because the intercalation caused month the God has intended to be the holy to be confused with other months. For scholars of the scared law, the month begin with the first sighting of the crescent moon. हर मंथ का आगाज चांद के चांद को जब पहला दिन होता है तब से हर मंथ का आगाज हो जाता है. दिस ऑब्जर्वेशन इज relatively simple affair providing that one knows roughly where and when to look and the western sky is clear. ठीक है, ये जो हमारा ल्यूनर कैलेंडर है, ये दूसरा जो होता है अमेरिका वाला कैलेंडर, इससे डिफरेंट है. उसमें जो जो डेज का गैप है वो नहीं आता. ठीक है, उसमें हर साल कुछ डेज स्किप नहीं होते. ठीक है, और जो दूसरा कैलेंडर है वो, ठीक है, ईसवी है, और जो हजरत ईसा अलैहि ज़माने के बाद स्टार्ट हुआ था. फिर जो हमारा कैलेंडर है, इसमें जो चांद की गर्दिश है वो इस तरह होती है कि हर साल 11 दिनों का गैप आ जाता है. और इसको प्रूव किया था फिर बाद में इंसानों ने. ठीक है, मतलब जैसे तो उसकी गर्दिश को मद्देनजर रखते हुए. ठीक है, इस तरह ये एक और लिंक क्रिएट हो गया, डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन. ठीक है, इसमें अब डायरेक्शन का बताएंगे कि शुरू शुरू में डायरेक्शन नहीं थी. ठीक है, सिर्फ काबा इज श्राइन ऑफ हिस्टोरिकल रीजन, फोकल पॉइंट ऑफ नो रिलीजन. जब मतलब स्टार्ट हुआ था तो खाना काबा बनाया गया. ठीक है, खाना काबा जब बनाने का हुक्म आ गया, वहां पे इबादतें स्टार्ट हुई, तो उस सिर्फ वही ओरिजिन था, मतलब था कि ये फोकल पॉइंट था कि हर मुसलमान इसकी तरफ खड़ा होकर फिर क्या करेगा, नमाज अदा करेगा. शुरू में मशरक मगरब ईस्ट वेस्ट कोई भी, ठीक है, इसका कोई रीजन नहीं था, कोई इसका लिंक नहीं था. फिर आहिस्ता आहिस्ता आए, ठीक है, साइंटिस्ट ने, ठीक है, ये डायरेक्शंस को क्लियर करते हुए, ठीक है, ईस्ट वेस्ट और ये सारा कुछ बनाया. द काबा इज द श्राइन ऑफ uncertain historical region which is served as sanctuary and the center of pilgrim for the centuries before the advent of Islam. It was adopted by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as the focal point of new religion, and the Quran advocates prayer towards it. ठीक है, for Muslim it is a physical pointer to presence of Mecca during their prayers.
Mosques are built with the prayer wall facing the Kaaba. उसके बाद the direction being indicated by a mihrab or prayer niche. In addition, central ritual acts such as reciting the Quran, announcing the call to prayer, and slaughtering animals for food are to be performing facing the Kaaba. कि मतलब हर काम जो था वो काबा के इर्द गिर्द ही होने लगा, वहीं पे नमाज पढ़ी जाने लगी, वहीं पे कुर्बानियां होने लगी. Also, Muslim graves and tombs were laid out to be the body would lie on its sides and face the Kaaba. In the first 2 centuries of Islam, when mosques were being built from Andalusia to Central Asia, the Muslims had no truly scientific means of finding the Qibla. Certainly, they knew roughly the direction they had taken to reach wherever they were, and the direction of the road on which pilgrims left for Mecca could be, and in some cases actually was used as Qibla. But they also followed to basically procedures, observing traditions and developing a simple expedient. ठीक है, और फिर टाइम के साथ साथ साइंटिस्ट ने ये तमाम डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, ये काबा को ही ओरिजिन बना के, ठीक है, इनका क्या कर दिया, इनको डिफाइन कर दिया कि कौन सी पोजीशन किस तरह बनती है. और ये एक और मेरिकल है. अब कंक्लूजन की तरफ आ जाते हैं. बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, हम एक छोटी सी मीटिंग में हर एस्पेक्ट को नहीं बयान कर सकते. और ठीक है, साइंस ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है. और जो हमारी रिलीजन के डिफरेंट एस्पेक्ट है उनको अपने साथ रिलेट किया है, जैसा कि ल्यूनर कैलेंडर की ऑर्गेनाइजेशन है. और अब उसके बाद डिफाइंड टाइम्स ऑफ प्रेयर, ये इसकी भी रेगुलेशन हुई है, ठीक है, कि 5 वक्त की नमाजों के कौन कौन से टाइम है, ठीक है, उनका टाइम बताया. डायरेक्शन डिटर्मिनेशन हुई. मेडिकल साइंस में हमें बहुत हेल्प मिली, और इसके अलावा मैनी अदर थिंग्स, बहुत सारी और चीजों में हमें क्या मिला, हमें साइंस ने बहुत ज्यादा हेल्प किया. ठीक है, एनी क्वेश्चन? थैंक्स फॉर लिसनिंग मी केयरफुली. मैम वैसे मतलब एक सवाल मेरे जहन में मतलब काफी अरसों से मतलब कुछ मतलब बहुत से लोगों ने तंग भी किया। हम लोग कहते हैं कि मतलब सारे जो प्रोसेस होते हैं इंसान के ना वही तो दिमाग से रिलेटेड होता है, लेकिन कुरान पाक में कहते हैं कि ये जो है दिल से रिलेटेड है। तो मतलब इसके बारे में आपकी क्या मतलब क्या ख्याल है, क्या राय है? रिपीट, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज, मुझे समझ नहीं आई. मैम हम लोग बहुत से मतलब मैं खुद साइकोलॉजी से हूँ, मेरा ताल्लुक है लास्ट सेमेस्टर है। तो हमें लोग बहुत कहते हैं कि मतलब अक्सर जो इंसान के रिलेशंस होते हैं मेमोरीज होते हैं सारे मतलब वो तो है माइंड में, लेकिन कुरान पाक कहते हैं कि वो उसका ताल्लुक जो है दिल से है। क्योंकि जब उसमें भी फरमाया गया है कुरान पाक में कि दिल को जो है जंग लग जाते हैं मतलब दीन ना करने से मतलब दीन की दूरी से। तो इसमें मतलब माइंड के क्या रोल अदा कर लेगा? मतलब आप कह रहे हैं कि हर इमोशन का ताल्लुक दिल से है, कुरान में ये कहा गया है? हाँ जी बिल्कुल मेरा यही। जी, हर इमोशन का ताल्लुक दिल से ही होता है, ठीक है. तो ये जो हम मतलब हमें कहते हैं दिल और दिमाग के दरमियान जो जंग होती है, क्योंकि जो अल्लाह की जात है ना, अल्लाह की जात पे जो यकीन है वो हमारे दिल में बसता है. इसीलिए हम हमारा हर इमोशन जो होता है, जो भी हमारी हर फीलिंग होती है, ठीक है, वो हमारे दिल से ही होती है, ठीक है. अब जो हाँ जी उसको तो फिर सोचने की थॉट है, जो हम्म, फीलिंग है वो दिल से है, जो उसके सोचने की थॉट है वो यहाँ पे है, वो ब्रेन में है, ठीक है. अब मतलब हम उसको लोग सोच के, जी जी, जी मतलब आप बोलो। जो थॉट है उसको सोच के फिर जो हमने फैसले लेना होता है, फिर सोच के फैसला लेना होता है. जो हमारी फीलिंग है वो हमारे दिल से ही. मतलब तो हमें यही कहते हैं कि दिल के जो है वो खाली धड़कन के काम करते हैं, उसमें इस तरह के कुछ जो नहीं होते हैं। साइंस तो ये कहते हैं। मैं वही बात तो कर रही हूँ, ठीक है. साइंस ने अब हर हर मतलब जो चीज है उसको, उसके लिए मुख्तलिफ जगह बता दी हैं कि मतलब
जो इस चीज की फीलिंग है वो यहाँ पे है, जो इस चीज की फीलिंग है वो यहाँ पे है। वही तो मैं बात कर रही हूँ कि ओवरऑल जब हम कहते हैं तो ये कहते हैं कि हर किस्म की जो फीलिंग होती है वो हमारे दिल में होती है, फिर हम उसको सोचते हैं। ठीक है, वो जो सोचना होता है वो हमारा उस चीज के साथ लिंक हो जाता है जहाँ पे हमारी उस चीज की ठीक है, उस चीज का ओरिजिन मौजूद है। और एग्जाम्पल, हमारे जो खुशी के एहसास है वो दिमाग के किसी एक खास कोने में होते हैं। मैं इस टाइम पे याद नहीं कर पा रही कि वो कौन सा कोना होता है। ठीक है, जो जब ठीक वो है। वहां से ओरिजिन हमारा वहां से है, ठीक है, उसका इंटरलिंक हमारा वो वहां से है। लेकिन जब वो फीलिंग जाती है तो सोचते तो हम दिमाग से ही है ना। ठीक है, जब उस फीलिंग को दिमाग से सोच लेते हैं तो फिर हम उसका फैसला दिमाग से कर पाते हैं। तो मतलब मैं मुझे काफी मतलब मेरे असल क्वेश्चन यही था कि मतलब हमारे साइंस की जो अक्सरियत मतलब जो मैंने अपने ही कुछ टीचरों से सुना है तो काफी अच्छे से वो कहते हैं कि नहीं, अक्सर रोल जो है वो जो है दिमाग अदा करते हैं। जिस तरह हमें डराने की सबकी जो है इसी तरह दिमाग में होते हैं, लेकिन उसमें दिल के जो है जिक्र बिल्कुल होते ही नहीं है। तो मतलब ये या जो है दिल के साथ इनका ये कनेक्शन असल है में या दिल नहीं, और दिमाग का उसके मतलब। कनेक्शन है। ये हर चीज दिल और दिमाग का कनेक्शन है। कुरान मजीद में भी यही बातें मौजूद हैं कि जो फीलिंग्स और एहसासात होती हैं वो दिल में ही होती हैं, लेकिन उनका दिमाग से इस तरह ताल्लुक होता है कि हर चीज हमने सोच क्यों? समझ कर ही करनी होती है। उनका जब डिसीजन हम, देना जो है दिमाग के साथ है। हाँ जी, उनका डिसीजन देना हमारे दिमाग के साथ है। अच्छा, तो बस मुझे भी मतलब इसी चीज में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था कि साइंस जो है, साइंस तो मतलब कहते हैं कि मैं प्रूव कर लूंगा, लेकिन कुरान में अल्लाह ताला ने उस चीज को जो प्रूव करके भी रखा हुआ है, लेकिन फिर भी मतलब इस तरह का मतलब वो बात होती है कि नहीं, ये तो इस तरह है। सो इस वजह से मेरा ये क्वेश्चन रहा। चलें, क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन? या खत Das muss für Grupp gemacht werden. कज़ाक करे वाला कज़ाक दा प्यारा जी, कोई क्वेश्चन है आपका? किसी और का कोई क्वेश्चन हो? जिसका भी कोई क्वेश्चन है ना तो वो माइक अनम्यूट करके तो पूछ ले मैम से। मेरा एक क्वेश्चन था। अस्सलाम वालेकुम, उलैबा बोल रही वालेकुम। हूँ। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि लाइक अभी जिस तरीके से भी एक हमारे जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने बात की इमोशंस के हवाले से, साइकोलॉजी कहती है कि इमोशंस जो होते हैं वो आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड जो होता है उससे जो है वो रिलेट करते हैं। लाइक आपके जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं या आपके साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस में आपकी सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स होता है, आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो फिर फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाते हैं। तो हम आप काइंडली थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें कि हार्ट और माइंड का क्या, आप किस तरीके से आप लिंक शो करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मुझे वो बात ना समझ नहीं आई थी, मैं शायद पिक नहीं कर पाई आपने जो कहा। तो काइंडली आप थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें इसको। देखिए, जो ओरिजिन है ना हर फीलिंग की, वो कुरान कहता है कि वो दिल में है, ठीक है, रब दिल में बसता है। ठीक है, अब ये कुरान ये चीज कही है कि रब दिल में बसता है, मतलब हर फीलिंग की जो ओरिजिन है ना वो दिल में है। अब जो उसका कनेक्शन है वो मुख्तलिफ जगह पे है। जैसे आप हार्मोन्स का बात कर रही हैं, ठीक है, अब खुशी के हार्मोन्स, दुख के हार्मोन्स, ये स्क्रीट होते हैं, ठीक है। जैसे ग्लैंड्स होते हैं हमारे, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, और ठीक है, खुशी के हार्मोन्स कहीं पे रिलीज हो रहे हैं और ये कहीं पे रिलीज हो रहे हैं। ये जो डिसीजन मेकिंग है ना ये हमारा दिमाग करता है। अब जो वो हार्मोन्स जब वो रिलीज होते हैं तब वो हमारे अंदर वो फीलिंग पैदा होती है, ठीक है।
मतलब इसमें क्वेश्चन आपका ये है कि आप रीजन पूछना चाह रही हैं कि दिल के साथ कैसे है इन चीजों का? मैम मेरा क्वेश्चन इस तरीके से था कि मतलब साइंस, जिस तरीके से हम साइंस को इस टाइम पढ़ रहे हैं, तो साइंस यही कहती है कि आपको जो फीलिंग, जो आपको स्टिमुलस मिलता है, उससे आपके साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। साइकोलॉजिकल चेंजेस जब होते हैं तो आपके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। तो मैं इसको इस्लाम से रिलेट करी थी कि ये साइंस तो ये कहती है, लेकिन हमारा इस्लाम क्या कहता है, और मतलब इसको किस तरीके से हम हार्ट से रिलेट कर सकते हैं। बिकॉज जो साइकोलॉजी है या साइकोलॉजिकल जो मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके अकॉर्डिंग तो हार्ट का इसमें लिंक नहीं एज सच आता। हम लोग वहां पे यही कहते हैं, मैं हार्ट साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, जो तो हार्ट वो है वो कहते सिर्फ हैं कि महसूस करने की एक जगह है। वो इन हॉर्मोन्स का ओरिजिन नहीं है, वो सिर्फ इन चीजों को महसूस करने की एक जगह है। हॉर्मोन्स जहाँ वो हमारे ग्लैंड से, ठीक है, निकल रहे हैं जो भी हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, सिर्फ उनको फील करने की जगह दिल है। हमारा दिमाग डिसीजन मेकिंग करता है, और वो उनका क्या है, वो जहां से निकल रहे हैं वो वहीं से निकल रहे हैं। जब वो निकलेंगे हमारे खून में गर्दिश करेंगे, ठीक है, हार्ट तक सिग्नल पहुंचेगा, हम उन चीजों को फील करेंगे, महसूस करेंगे, ठीक है, और हमारा दिमाग जो है वो उनकी डिसीजन मेकिंग कर लेगा बस। तो मैम आप ये कहते हैं कि मतलब खाली माइंड जो है वो डिसीजन देते हैं, चाहे जिस तरह भी हो ना, और तो ऐसे कुछ नहीं करते? आप क्या, आप ये कहते हैं मैम? जी जी। अच्छा अच्छा। तो मैम हमें कभी कभी इस तरह भी होता है कि हमें अचानक से एक चीज देख लिया जाए तो फिर उससे जो है दिल की धड़कनें मतलब क्यों इस तरह की तेज हो जाती है, तो फिर इसमें इसका क्या जस्ट मतलब वो किरदार हो सकता दिल की धड़कनें तेज ये होती हैं कि वो भी हार्मोनल चेंजेस होती हैं, ठीक है, जिससे हमारा बीपी, हमारा जो ब्लड फ्लो होता है वो सिर्फ तेज होता है? तो मैम अगर हम लोग इस चीज को मतलब थोड़ा वो कर ले, मैं दिल को क्या, अगर हम लोग तो कहते हैं कि ये चीज जो है ये मेरे दिल में पहले था या मेरे माइंड में पहले था, तो हम उम्री को तो हम लोग कहते हैं कि माइंड में है, लेकिन मैंने मतलब ये भी काफी मेरे जो है सुना है मतलब बहुत से लोगों से कि वो कहते हैं कि नहीं वही मेरे दिल में था, लेकिन इसको मेमोराइजेशन जो है वो यहाँ पे दिल को कह रहा है, है। माइंड को क्यों नहीं कह रहा है? ओ भाई, महसूस करने की जगह जो है वो दिल है, ठीक है, दिल में भी तो हमने कोई चीज महसूस करके रखी है ना बस। मतलब दिल में हम लोग ये किस चीज तरह हम महसूस? कहते हैं ना कि ये चीज मेरे दिल में थी, तो हमने वो क्या हाँ। केयर की है, महसूस करके रखी है। डिसीजन मेकिंग जो मेमोराइज करने की चीजों को कैपेसिटी है वो यहाँ पे है। ये सिर्फ एक फीलिंग की जगह है जहाँ पे एहसासात पैदा होते हैं, और ये एहसासात वो हॉर्मोन्स के जरिए आते अच्छा अच्छा। तो मतलब दिल जो है वो जो है मतलब मेमोराइजेशन भी मतलब वो ब्रेन में होते हैं, लेकिन इस तरह का खास कुछ नहीं है जिस तरह हम लोग कहते हैं कि, लेकिन ये साइंस साइंस तो ये भी कहते हैं कि हमें जो काम करना है वो हमें प्रूफ के साथ करना है, लेकिन कुरान हदीस को तो इसे जो है मतलब बिल्कुल उलट है, तो इसका इसके बारे में आपको क्या ख्याल है? हैं। हर चीज प्रूफ के साथ करनी है तो कुरान में क्या ये कहा गया है कि कहीं किसी चीज के लिए कोई प्रूफ नहीं चाहिए? ये क्वेश्चन है आपका? देख अभी कुरान कुरान पाक में तो मैम सब चीजों की मतलब प्रूफ तो है, जी लेकिन ये मतलब साइंस जो है उसकी मतलब हर चीज की जो है ऊपर रिसर्च करके फिर उसका प्रूफ निकाल देते हैं कि कहते हैं कि नहीं ये तो इस तरह नहीं था, लेकिन हमें अपने ही तरीके से उसको मतलब कर लेना है। जी। हमने हर चीज तो का इस प्रूफ दे दिया है सिर्फ अपनी अकल से। हाँ जी हाँ जी, मतलब ये इस तरह तो मतलब अगर देखा जाए तो साइंस और इस्लामी तो फिर काफी बड़ा फर्क है। साइंस तो जो कहते हैं कि मुझे प्रूफ चाहिए, लेकिन इस्लाम का तो प्रूफ पहले ही से होते हुआ है, मतलब कुरान पाक में है, सबसे बड़ा प्रूफ यही है। तो इसमें फिर मतलब जी। मैम हम लोग किस पे ज्यादा जोर कुरान दें? पाक, आपका क्वेश्चन ये है कि कुरान का हमारे पास कोई प्रूफ नहीं मौजूद? प्रूफ तो मौजूद है, सारे प्रूफ तो मौजूद है, लेकिन साइंस कहते जी। हैं कि मुझे प्रूफ साइंस के के भी बगैर मतलब हमारे पास साइंस के प्रूफ भी मौजूद है, हमारे पास कुरान के प्रूफ भी मौजूद है। तो क्या बिग डिफरेंस है इस बात में? मतलब होते हैं अभी जब साइंस कहते हैं साइंस
जब कोई कहे कि मतलब आपको जो इसके बारे में पता तो नहीं होते, लेकिन वो साइंस कहते हैं कि नहीं, मुझे जो चीज मैंने जो कहा है वो सही है, लेकिन ये इसी तरह नहीं होता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब अर्थक्वेक्स होते हैं, मतलब साइंस तो कहते हैं कि ये मतलब पहाड़ी एरियाज में ज्यादा होते हैं, खासकर मैं हूँ भी मतलब कोयटा से, तो मतलब उसी साइड पे ये जलजले काफी ज्यादा होते हैं। और कराची में नहीं होते क्योंकि वहाँ पे कोई पहाड़ नहीं होते, वहाँ पे प्लेन एरियाज होते हैं। लेकिन कुरान पाक में ये कहते हैं कि ये जो है इंसान के अमाल होते हैं, इंसानों की जब अमाल खराब हो जाती है तो जलजले आते हैं। और साइंस कहते हैं कि नहीं, अर्थक्वेक ये जो अर्थक्वेक कहीं पे भी आ सकता है, किसी भी टाइम आ सकता है और इक्वली आ सकता है। किसने इक्वली कहा आ है कि सकता है। पहाड़ी इलाकों में सबसे ज्यादा आता है? तो मतलब पहाड़ी देख अभी, इलाकों में जो ज्यादा आने की वजह और होती है। मतलब अभी उस देख मैं आपको वो बता रही हूँ, जियारत में हुआ था, मतलब अभी भी हुआ था, कुछ टाइम पहले भी हुआ था, सितंबर के एंड में। मतलब उस साइड पर हम लोग महसूस करते हैं कि मतलब यहाँ पर मतलब जलजले के खतरा जो है ज्यादा होते हैं, तो इस वजह से पहाड़ी इलाकों में जलजले के खतरात जो होते हैं उनकी वजूहात कुछ और है। अल्लाह मियाँ ने जो कुरान में जलजले की वजूहात जो आने की बताई हैं वो भी वही हैं, लेकिन वो पहाड़ी इलाकों में वो वजूहात ज्यादा होती है, बस इसलिए वहां पे ज्यादा आ जाता है। तो मतलब पहाड़ी इलाकों में मतलब अगर उसको देखा जाए जहाँ पे मतलब गुना ज्यादा पहाड़ी होते उधर तो इलाके नहीं में होते, जो पहाड़ी इलाकों जमीन में तो की क्या किया। अंदरूनी साख है वो कुछ डिफरेंट होती है, ठीक है, इस वजह से वहां पे ज्यादा आ जाता है। वो तो कहते हैं कि मतलब ये ग्लेशियर्स की वजह से होते हैं, वो ग्लेशियर्स मतलब उसके उस साइड पे वो जाते हैं, वो तो हम लोग नहीं जाते। लेकिन हम लोग खाली इस चीज को थोड़े से वो दे देते कि मतलब अगर होना था तो जहाँ पे गुनाह होना था वहां पे जो मतलब जलजले तो होते हैं, लेकिन वहां पे जहाँ कुछ नहीं होते वहां पर क्यों होते हैं। गुनाहों से तो इस तरह कोई का डिफरेंस जल्जलों का होते हैं गुनाहों से मतलब। कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह मियाँ ने कुरान में अच्छा, कहा है कि वादा किया है अपने रसूल से कि मैं इस उम्मत पर कोई भी अजाब नाजिल नहीं करूंगा, ठीक है। जो जल्जले होते हैं हमारे गुनाहों के बाहर नहीं आते, ठीक है, ये जमीन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से जल्जले आते हैं। बिल्कुल हाँ, चेंजेस तो होते हैं, और तो ये हमारा भी मतलब सोच है, चेंजेस तो होते हैं। लेकिन फिर मतलब जैसे लोग कहते हैं कि नहीं ये तो हमारे अमाल की वजह है, अगर आप देखा जाए तो सबसे पहले ये बात कहते हैं कि नहीं ये हमारे अमाल है, तो मैं समझता हूँ इसको अमाल के साथ जोड़ना नामुनासिब होते हैं। किरण, जी बिल्कुल, इसको अमाल के साथ जोड़ना बिल्कुल नामुनासिब है। जी अच्छा जी। ठीक है, शुक्रिया। सही सिस्टर, मेहरबानी, तकलीफ माफ करना, टाइम देने का शुक्रिया। आई थिंक सो के टाइम कंप्लीट हो गया है, जस्ट जी 1 मिनट। जी बतूल। मैं कह रही हूँ कि टाइम, थैंक यू सो मच किरण, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। जी टाइम कंप्लीट हो गया है। मुस्फिरा कंक्लूड कर दें आप मीटिंग को। ओके सही है, माशाल्लाह। किरण सिस्टर आपने अच्छा खासा मतलब वो डिटेल दे दिया, शुक्रिया उस देने का, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह अल्लाह जज़ाकल्लाह। हाफिज, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ओके किरण, मुस्फिरा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुस्फिरा, एंड कर दो मीटिंग। जी ठीक है।